Okay, waiting, Varun. We'll understand how to use the formula. So this will be the very important sum. If you understand this particular type of sum, you will be in a position to understand the entire chapter. So the entire chapter depends on this formula. Okay, I can see most of you are done. Anybody still pending, or I can go ahead? Okay, done. Okay, so okay, okay, no problem. We'll take up a sum. Okay. Now this is a sum from your exercise 1.1. The following is a frequency distribution of heights of 200 male adults in a factory. So their heights are given 145 to 150, 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165, 165 to 170, 170 to 175, 175 to 180, 180 to 185. And their respective frequencies are given. Now we need to find the central height. Can you tell me what do I need to find out? What do I need to find out when they're asking me for central height? Yes, Prithvi has given me the perfect answer. Prithvi from Vikroli. Heth has given me the right answer. धैर्य मुझे समझा नहीं, सिर्फ एक नंबर लिख कर दिया है. Okay, others. Okay, Dhairya is right, Heth is right, Prithvi is right. Now when they are asking for central height, थोड़ा सोचो ना क्या ढूंढने बोला रहेगा. अभी हम लोग ने तो पढ़ा है सिर्फ क्वार्टाइल्स, तो या तो तुम्हारा आंसर होगा Q1, या तो आंसर होगा Q2, या तो आंसर होगा Q3. एवरेज हाइट मतलब क्या? एवरेज हाइट कैसे ढूंढते हैं? Come on. Okay, Tanisha is right. Tanisha is right. Tanisha from DN Nagar is right. Very good. What about others? You are not even thinking. Yes, Sujal is right from Mulund. Perfect. अभी देखो सेंट्रल हाइट मतलब जो एग्जैक्टली बीच में आता है. अभी तुम लोग ही सोचो Q1, Q2, Q3 में से एग्जैक्टली सेंटर पे कौन आता है? पूरा डेटा का सेंटर पॉइंट क्या है? Q1 है कि Q2 है कि Q3 है? कम ऑन, अभी तो सोचो डेटा का सेंट्रल पॉइंट क्या है? क्योंकि हमेशा, यस हर्षल राइट, यस रिचल राइट, क्योंकि हमेशा तुमको क्या ढूंढना है डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, तो तुमको सोचना पड़ेगा. परफेक्ट. देखो सेंट्रल हाइट मतलब बीच में, तो इट कुड बी एनीथिंग विच इज सेंटर. इट कुड बी Q2, इट कुड बी D5 और इट कुड बी P50. तो अभी हम लोग ने वो डी डेसाइल्स और परसेंटाइल्स नहीं पढ़ा है. लेट अस स्टिक टू Q2. Q2 का एक और नाम है, Q2 मतलब होता है मीडियन. तो तुम लोग मीडियन का फॉर्मूला यूज करोगे 10th का और इसको सॉल्व करोगे Q2 ढूंढने के लिए, तो भी तुमको राइट मिलेगा. बट लेट अस गो फॉर Q2. ओके, सो लेट अस प्रोसीड विद द सम. नाउ सबसे पहले स्टूडेंट्स चेक करो और मुझे बताओ क्लासेस कंटिन्यूअस है कि नहीं. क्लासेस कंटिन्यूअस है कि नहीं? क्विकली. एंड आई एम अज्यूमिंग यू नो दिस पार्ट. ओके, निखिल देशपांडे सेज यस, Vikroli Ritual says yes, Sachi says yes, Harshal says yes. Continuous classes. So everybody is saying yes. How do we know whether the continuous classes are continuous or not? अभी देखो ये 150 है और ये भी 150 है, ये दोनों सेम है तो क्लासेस कंटिन्यूस है. ये देखो ये हर बार 150, 150, 160, 160, 170, 165, 165, 170, 170, 175, 175, 180, 180. अगर ये सेम है तो क्लासेस कंटिन्यूस है, अगर ये सेम नहीं है तो क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है. Now students, to find out quartiles, deciles or percentiles, once we have to make sure that the classes are continuous. उसके बाद मुझे एक चीज का जरूरत पड़ता है, वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप. अभी मुझे कौन बताएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप क्या होगा इसमें? Come on, who is ready to answer?
Let us pick up somebody. Let us. I want everybody to message me on chat here because I can see some odd messages on the host number, but I am not going to pick up that. Okay. I will randomly pick up somebody to answer to make sure that nobody is sleeping. Ghatkopar Arya Navikar. Is something wrong with his internet? What is Harsh OP? I will remove you if your names are not proper and the branches name are not written. Bachalo. Hi Rajasi. Hello. Okay, mute कर दिया. Neeraj Suryavanshi from Ghatkopar. Hi Neeraj. Okay, net issues to Neeraj. Okay. There's some problem in unmuting few people. नहीं धैर्य तुझे नहीं मिल गया. Meanwhile, Prithvi from Vikroli has already answered, so I will take his answer. First one would be 4. So he's been smart enough. Sachi has given me the answer. Okay. Four. First one would be 4. Now, 4 plus 6. 4 plus 6 gives us 10. 10 plus 25 gives us 35. 35 plus 57 gives us 92. 92 plus 64 gives us 156. 156 plus 30 gives us 186. 186 plus 8 gives us 194. And 194 plus 6 gives us 200. Now, this is the cumulative frequency that we are supposed to find for every sum. Okay, Harshal is right. And most of you who have given answer is right. So that is not a problem. Now, students, if you look at the formula, the total, you all know n will be 200. Whatever value we get here is always the n. These two values are same. Now, students, if you look at the formula of Qi, L plus H upon F, In upon 4 minus Cf. Now, what do we need first is, initially what we need is, we need the value of I, and we need to find the value of In upon 4. This is the most important term of the formula. All other components of the formula depends on In upon 4. So first we'll find out In upon 4. Can you tell me the value of I and N? Anybody who can tell me the value of I and N? What is I and what is N? Come on the chat box quickly. And I can see only few of them are not replying on the chats. Many of them are replying. Many of them are not replying. So people who are not replying on the chats will be picked up. Okay. Dhairya has given me the answer. Richel, you have given me the answer, right? But you have not given me the... Okay, Richel has given me the answer. So there are only 2 students, 3 students rather. Prithvi has also answered. Okay, Het has answered. Sachi has answered. Ronak has answered. Tanisha has answered. Sujal has answered. Good. Perfect, Het. Now, In upon 4, definitely, see, everybody told me that we are supposed to find out Q2. हमको ढूंढना है Q2. तो यहाँ पे I के जगह पे 2 आ गया, तो मैं डेफिनेटली मेरा I हो गया 2, और N तो यहाँ पे मेरे टेबल में लिखा हुआ है 200. सो In upon 4 में हम लोग I के जगह पे 2 डालेंगे, सेंट्रल हाइट तो है, I के जगह पे 2 डालेंगे, N के जगह पे 200 डालेंगे अपॉन 4. अभी इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग. We'll try to get the answer. 2 1s are 2 2s are, then 200 upon 2 would be 100, or 400 upon 4, either ways you can calculate, it would be 100. Now students,
Now this is the most important term. Try to understand the most important term of this sum would be value of in upon 4. Now pay attention. Now once we get in upon 4, once we got 100, in upon 4 मिला 100. Once we get this, अभी ध्यान से सुनो. Find out a cumulative frequency. Find out a cumulative frequency which is equal to 100. Find out an equal cumulative frequency which is equal to 100. तो मुझे बताओ जो लास्ट कॉलम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, उसमें ऐसा कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्या जो 100 को इक्वल है? ऐसा कोई भी है इसमें से बताओ. इक्वल टू 100 है क्या? यस नो में आंसर करो. चलो क्विकली. ऐसा कोई भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है which is equal to 100? Sachi, equal to 100. Equal to 100. Okay, Prithvi says no, Sachi says no, 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 no. Yes, obviously no, because I cannot see a single cumulative frequency which is equal to 100. अभी ध्यान से सुनो. अगर मुझे equal to 100 नहीं मिलता है तो मुझे ऐसा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना है जो 100 से थोड़ा ज्यादा है. सो आउट ऑफ द कॉलम हाइलाइटेड मुझे बताओ 100 से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? विच क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? यस तनिषा, वेरी गुड. पृथ्वी वेरी गुड. सुजल वेरी नाइस. हर्षल वेरी नाइस, वेरी नाइस. निखिल वेरी नाइस. स्वाम वेरी नाइस. वरुण वेरी गुड. Eighth, very good. Sachi, very good. Okay, a lot of you are getting, a lot of you are telling me the answer is 51, 56. So definitely हमको दिख रहा है कि 100 नहीं था तो 100 से थोड़ा ज्यादा. तो ये अभी entire रो जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. नाउ समझने का कोशिश करो. क्वार्टाइल ढूंढने से पहले क्वार्टाइल क्लास ढूंढना जरूरी होता है. नाउ व्हाट इज क्वार्टाइल क्लास मैं तुमको थोड़ा देर में बताता हूं, बट डेफिनेटली अभी 156 वाला क्लास इज द क्वार्टाइल क्लास, या फिर इज द ith क्लास बोलो, क्वार्टाइल क्लास बोलो, चलेगा. तो 165 to 170. Now this becomes very, very, very important thing. The entire sum will be based on this only now. Entire sum 165 to 170. It will be based on this. Okay. Now इतना समझ में आया कि 165 to 170 कैसे आया? इतना समझ में आया सबको? सबको समझ में आया 165 to 170 कैसे है? Any doubt still here? Okay. Everybody has understood. Now students, once you get ith class या फिर quartile class, अभी ये 165 to 170 is the quartile class. इसका मतलब क्या है मेजर? इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो क्वार्टाइल 2 का आंसर आएगा ना, क्योंकि तुम लोग ने I2 यूज किया है, तुम्हारा क्वार्टाइल 2 का आंसर 165 और 170 के रेंज में रहना चाहिए. 165 से छोटा नहीं हो सकता है, 170 से बड़ा नहीं हो सकता है. यू कैन ऑल्सो यूज दिस एज योर चेक पॉइंट टू कैलकुलेट, टू चेक वेदर देयर इज एनी कैलकुलेशन एरर एट द एंड. तो ठीक है, अभी सबसे पहले फॉर्मूला में देखो मेरे पास क्या क्या वैल्यूज नहीं है. हमारे पास वैल्यू एल का नहीं है, एच का वैल्यू नहीं है, एफ का वैल्यू नहीं है, सी एफ का वैल्यू नहीं है. तो ढूंढ लेते. तो ध्यान से सुनो, जैसा अगर तुमने फॉर्मूला लिखा था तब देखा रहेगा, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास. ये जो क्वार्टाइल क्लास का लोअर लिमिट होता ना, ये हमारा एल होता है. एच तो सबको मालूम है, ये दोनों का डिफरेंस ले लो, 155 माइनस 145 5. एल लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास, एफ ये दोनों का डिफरेंस ले लिया, एच दोनों का डिफरेंस ले लिया, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, जो क्वार्टाइल क्लास का फ्रीक्वेंसी है वो एफ हो गया. अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ आई एन है, आई एन अपॉन 4 का वैल्यू तो है हमारे पास 100. सी एफ जैसा मीडियन में करते थे हम लोग स्टैंडर्ड 10th में, सी एफ वुड बी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, क्वार्टाइल क्लास के पहले वाले क्लास का सी एफ. तो सी एफ वुड बी 92. इतना समझा? इतना समझा? Did you understand? Say yes, no? Okay, Linesh understood. Makhwana understood. Vijay understood. Richel understood. So all those who are not asking
yes or no, तो उनको मैं पूछूंगा कि क्या रोल है. निखिल, okay, I will explain again. Nikhil, I'll just take a retour to the steps till here and then I will continue. Point taken, Nikhil. निखिल, कहां से समझाओ? आफ्टर in/4 का वैल्यू की स्टार्ट से? निखिल, इफ यू कैन टेल मी. स्टार्ट से रिवाइज करूं कि in/4 के बाद से अंडरस्टूड रिवाइज करूं? What about others? Others are not answering. Now I'm going to pick up and ask questions. Nikhil, where are you? Waiting for your answer. Okay, Harshal. Good, Harshal. Okay, Khushbu. Okay, what I will do is I will revise after in/4. Okay, thank you, Nikhil. I'll in/4 के बाद से explain करता हूँ. ठीक है, इतना समझ गया कि 165 to 170 मेरा ith क्लास है या फिर मेरा क्वार्टाइल क्लास है. तो मुझे ढूंढना है L क्या है, H क्या है, F क्या है और CF क्या है. तो बहुत सिंपल सा टेक्निक है. 165 to 170 अगर तुम्हारा क्वार्टाइल क्लास है, वो क्लास का लोअर लिमिट L हो जाता है. ये मेरा L हो जाता है लोअर लिमिट. वो क्लास का फ्रीक्वेंसी F हो जाता है. वो क्लास से पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF हो जाता है. वो वाला नहीं, उससे पहले वाला. और H, ये दोनों का डिफरेंस हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी डिड. Okay, now I am substituting, so pay attention. Let us see how to calculate. थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए मैं तुमको सजेशंस दूंगा. QI हो जाता है Q2, तो Q2 हो जाएगा. L हमारा 165, H हमारा 5, F हमारा 64, in/4 का वैल्यू 100 है, माइनस CF हमारा 92 है. ये मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया वैल्यूज. in/4 का वैल्यू डायरेक्टली 100 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं क्योंकि in/4 को हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है. ना स्टूडेंट्स, मेरा एक सजेशन है, अगर आंसर तुमको ज्यादा प्रिसाइज चाहिए, ये जो 165 को है ना, इसको पहले ऐड ही मत करो. ये जो इतना सा पार्ट है ना, एल के बाद, एल प्लस के बाद जो पार्ट है, इसको सॉल्व करो पूरा. डेसिमल्स तक लेकर आओ, पूरा डिवाइड डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई सब करके डेसिमल्स तक लाओ, फिर 165 से ऐड करो तो आंसर थोड़ा ज्यादा प्रिसाइज आएगा. दैट इज माय सजेशन. तो 165 एज इट इज, 5/64 as it is, 100 minus 92 happens to be 8. Now 165 as it is. Now this would be cancellation possible है, तो cancellation 8 ones are 8 8s are, तो ये हो जाएगा 5/8. Now Q2 165, 5/8 हो जाएगा 0.625. Now for the benefit of those who don't know division, 8 divided by 5 करना पड़ेगा. 8 zeros are 0.50, 8 6s are 48, 20, 8 2s are 16, 40, 8 5s are 40. तो 8 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 0.625 आएगा. नाउ 165 प्लस 0.625. अभी ये एडिशन में भी किसको प्रॉब्लम होता रहेगा, तो 165.000, क्योंकि डेसिमल के बाद कुछ नहीं है, और ये आएगा 0.625. तो हम लोग जब ऐड करेंगे डेसिमल्स को, ये आएगा 5 2 6 और 165.625. अभी इफ यू वांट यू कैन राउंड इट ऑफ. राउंड ऑफ करने का जरूरत नहीं लगा मुझे, बिकॉज डेसिमल एंड हो गया. सो दिस इज हाउ वी फाइंड द मीडियन. See, now first sum is very important. Yes, the area, your answer is right. Ronak has given me the answer already. Very good. I hope everybody understood. I'll give you a minute to copy down the sum, so please copy down the sum quickly. Quickly copy down the sum, quickly, and let me know once done.
Are you all done writing, students? Done? Please let me know if you're done, or I should wait more. Okay. Anybody not done? That I need to wait more? Okay. Okay, the super fast ones are answering. What about others? Okay, now this next, I'm moving on to next sum. And now next sum we'll do it together, and I'll pick up somebody on random to discuss the sum with me. Okay, start finding the cumulative frequency ones. Now students, before I go ahead, just a small observation of this sum. Okay. Now if you see, the answer is 165.625 and it lies somewhere in between 165 to 170. So this becomes the checkpoint. You always need to check कि तुम्हारा आंसर 165 से छोटा नहीं हो सकता, 170 से बड़ा नहीं हो सकता. फॉर दिस पर्टिकुलर सम ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा क्वार्टाइल क्लास 165 to 170 है for I is equal to 2, the ith class. Okay. Now this is the sum for you. Everybody start finding the cumulative frequency first. So all of you are doing the sum together. Meanwhile, I pick up somebody to answer. Come on, quickly find out the cumulative frequency. Okay, done with cumulative frequency, everybody? Okay, first of all, what does upper quartile mean? Okay, cumulative frequency is done. So I'll just share the answer of cumulative frequency. 20 plus 7, 27, plus 6, 33, plus 4, 37, plus 2, 39, plus 1, 40. So N would be 40. Now what does upper quartile mean? Now what does upper quartile mean? Okay,
The right answer given to me, Dhairya, Rajasi, Richard, Swaham, Richel, Harshal, Khushbu, and no. Only these are the people who gave me the right answer. Rest of them have either not answered or given me wrong answer. So, just a second. In fact, okay, I did not read it. It's upper quartile, so it cannot be Q1. I'm sorry, I took the names of the wrong ones. Anybody who has answered Q3 should be the right, because I हो जाएगा 3, N हो जाएगा 40 और upon 4. Lower quartile is Q1, upper quartile is Q3, middle quartile or the central data is Q2. So you can make a note of it. Upper quartile हमेशा Q3 होता है. Yes, Sachi. Very good. चलो जल्दी जल्दी IN upon 4 का वैल्यू बताओ. IN upon 4 का वैल्यू आया, किसी को आया IN upon 4 का वैल्यू? IN upon 4 का वैल्यू ओके. धैर्य हैज आंसर्ड. बहुत लोगों ने आंसर किया. धैर्य से पहले भी आंसर किया है. द फर्स्ट वन टू गिव मी द आंसर वाज निखिल. वेरी गुड निखिल. तो आंसर आया 30. तो मुझे बताओ क्वार्टाइल क्लास क्या होगा? क्वार्टाइल क्लास क्या होगा? 30 तो है नहीं, 30 से ज्यादा वाला क्लास. 30 तो है नहीं, 30 से जस्ट ज्यादा वाला क्लास कौन सा है? ओके, पृथ्वी हैज आंसर्ड. वेरी गुड पृथ्वी. ना 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 निखिल चेक करो बेटा. ये साची कैसे? 30 से जस्ट ग्रेटर क्वार्टाइल क्लास क्या आएगा? धैर्य हैज गिवन मी द राइट आंसर. 33 आएगा बराबर. क्वार्टाइल क्लास क्या है? क्वार्टाइल क्लास क्या आएगा? क्वार्टाइल क्लास थोड़ी 33 है. 33 is the cumulative frequency which is greater than 30. It's okay, Sachi. It's okay. No problem. Yes, Richel. Very good. Very good, Sachi. What about others? जल्दी 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 आंसर करो. ओके ओके तनिषा राइट. 30 से जस्ट ग्रेटर 33 है, तो उसका करस्पॉन्डिंग क्लास 30 to 40 मेरा हो जाएगा क्वार्टाइल क्लास. तो एल का वैल्यू क्या आएगा? एल का वैल्यू जल्दी बताओ. एल का वैल्यू, एल का वैल्यू 30. वेरी गुड लिनेश. एल इज 30. एच क्या आएगा? एच आएगा 10. वेरी गुड हेत. एफ क्या आएगा? एफ. वेरी गुड हेत. वेरी गुड राजसी. सी एफ क्या आएगा? सी एफ आएगा 27. सी एफ आ जाएगा 27. तो याद रखो एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. एल lower limit of the quartile class. F frequency of the quartile class. CF cumulative frequency of the preceding class. H तो ये दोनों का डिफरेंस है 20 minus 10 10. अभी चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो और मुझे बताओ Q3 का आंसर. आई एम गिविंग यू सम टाइम 5 minutes to solve. कुछ लोगों ने पहले आंसर दे दिया. इतना जल्दी फास्ट है तुम लोग. Okay, everybody is done. There are many still messaging.
On the other account, Manish, Nazia, Sneha, Neeraj, Shrushil, you people are messaging to an account where I'm not reading. Message to chat here. There is another account. I just opened this chat right now. So yes, Neeraj. Yeah, Neeraj has got. No, the message is right. I don't know the answer is right. Neeraj, I want you to just check your calculation. Yes, 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 Manish here. Okay, okay, okay. Most of you are getting the answers right. Yes, Tanisha. Okay, I will substitute. QI हो जाएगा Q3, L is 30, H is 10, F is 6, IN upon 4 is 30 minus CF which is 27. 30 as it is, 10 upon 6 भी as it is रखना है, cancel करना है, it's your choice. और 30 minus 27, अभी यहाँ पे अगर मैं subtract करता हूँ 30 minus 27 को आंसर आता है 3. Now 3 1s are 3 2s are हो जाता है और 10 upon 2 बच जाता है. तो 10 upon 2 को पहले कैंसिल करो, नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करो, दैट्स ओके. 10 upon 2 is 5, so answer would be 35. The upper quartile is 35. Upper quartile is 35. Okay, I'm giving you 2 minutes for those who have not done. Good. And finish the sum, and then I will go to the next sum. Okay, I'm going to the next sum. अभी next sum तुमको पूरा खुद से करना है. Okay, next sum is missing frequencies. तो मैं करता हूँ. This could be a bit complicated, students. तो बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. Okay. Okay. आज ओके, हर्षल से आज धैर्य जरा शांत है. हर्षल से आज धैर्य जरा शांत है. ओके, नो प्रॉब्लम. Okay, I will pick up somebody new who can help me with the sum. Actually, थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है अनम्यूट करने में. No problem. It's okay. Just pay attention. I'll just start with the sum and then let us see who could be involved in the sum, or I'll take it ahead myself. The following is the data of pocket expenditure per week of 50 students in the class. It is known that the median is 120. Median is 120. तो मैं क्या क्या assume कर सकता हूँ, क्या 120 है, क्या क्या दिया है डेटा में देखना पड़ेगा. Median is 120. To tell me क्या 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 दिया है 120. क्या बात है, क्या कर रहे हैं. धैर्य से सर मेरे मैसेजेस के आप रिप्लाई नहीं देते. अरे ऐसा हो ही नहीं सकता. सब कंप्लेन करते हैं धैर्य कि मैं सिर्फ तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई देता हूँ. Okay, okay, perfect. The perfect answer was given to me by lot of them. Prathamesh, Hey, Dhairya, Tanisha, Dhairya again, Richard, Harshal, Prathamesh, and Dhairya again. No, Nazia, not N is 120. अरे ऐसा नहीं है, मैसेजेस का कभी कभी कोई मैसेजेस रह जाता है. डोंट वरी. आई एम सॉरी इफ यू फील सो.
ठीक है. नाउ समबडी टोल्ड मी n is 120. मुझे ये नहीं बोला है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 120, मुझे बोला है मीडियन इज 120. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट Q2 is 120. The value of Q2 is 120. Okay. Now Q2 120 दिया तो डेफिनेटली ये एज्यूम करते हैं कि हमको मीडियन ढूंढना है. ठीक है, ये एज्यूम करते हैं कि हमको मीडियन ढूंढना है. और यहां पे 50 स्टूडेंट्स बोला है टोटल, तो n वुड बी 50. वेरी गुड मनीष. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मालूम है, अभी तुमको है ना 2 क्वेश्चन मार्क दिखता रहेगा. ये देखो, एक इधर और एक इधर. सेकंड का फ्रीक्वेंसी और सेकंड लास्ट का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन मार्क है. तो दोनों को मैं नाम चेंज कर देता हूं, एक को ए दे देता हूं और एक को बी दे देता हूं. मुझे वैल्यूज मालूम नहीं है तो मैं ले लूंगा ए एंड बी. स्टेप वाइज ध्यान दो. तो सबसे पहले N50 है, बहुत क्लियर है क्योंकि क्या बोला, तो फॉलोइंग इज द डेटा ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ पर वीक ऑफ 50 स्टूडेंट्स. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 क्लियरली क्वेश्चन में दिया. तो n इसका टोटल तो 50 आने वाला है. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप क्या आएगा बताओ. चलो, सबसे पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, 7. वेरी गुड. पहले सेम टू सेम 7 आ गया. फिर नेक्स्ट वाला क्या आएगा, एक्सेलेंट आर्या. 7 प्लस ए, 7 और ए को ऐड करूंगा तो उसका एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो 7 प्लस ए. उसके बाद वाला क्या आएगा, वेरी गुड पृथ्वी. पृथ्वी कैलकुलेशन गलत है, सॉरी पृथ्वी, थोड़ा कैलकुलेशन. तनिषा इज राइट, रौनक इज राइट एंड मेनी ऑफ देम आर राइट. तो देखो 7 प्लस ए प्लस 15 करना है, तो पहले 15 प्लस 7 करेंगे, 22 आ जाएगा. फिर 22 प्लस ए को वैसे लिखेंगे. अभी 22 प्लस ए प्लस बी करना है, तो ऐड तो होगा नहीं, तो ऐसे लिख देंगे 22 प्लस ए प्लस बी. 22 प्लस 3 हो जाएगा 25 प्लस ए प्लस बी. अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम में किसी को डाउट है, किसी को भी डाउट, एनीबडी हैज अ डाउट इन द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कि यहां तक तो परफेक्टली समझ गया सर, कोई टेंशन ही नहीं, इजी इजी इजी, राइट, यहां तक इजी. अच्छा, अभी है ना, बिफोर आई गो अहेड, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू ऋषि. ओके, ग्रेट 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 निखिल, ग्रेट ग्रेट. अभी यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग को बहुत क्लियरली मालूम है स्टूडेंट्स, हमको बहुत क्लियरली मालूम है कि ये जो लास्ट वैल्यू होता है, ये हमेशा किसका वैल्यू होता है, ये जो लास्ट होता है वो हमेशा किसका वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है बताओ. यस रिचल, यस यस प्रथमेश, सबको मालूम है ये 25 प्लस ए प्लस बी, ये जो है ना, ये n का वैल्यू होता है. तो कैन आई से फ्रॉम द टेबल 25 प्लस ए प्लस बी इज 50, बराबर, मतलब ये दोनों इक्वल है ना, तो दिस इज इक्वल टू n बोल सकता हूं, दिस इज इक्वल टू 50 बोल सकता हूं कि नहीं. यस, वेरी गुड हर्षद. तो ये दोनों इक्वल हो गया. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, परफेक्ट, समझ में आ गया सबको. अब ये प्लस 25 को उधर शिफ्ट कर देते तो सो दैट आई कैन गेट एन इक्वेशन. प्लस 25 उधर गया तो माइनस 25 हो जाएगा. तो a प्लस बी इज इक्वल टू 50 माइनस 25, तो a प्लस बी हो जाएगा 25. हम लोग दे देते इक्वेशन नंबर 1. क्या बात है स्नेहा, वेरी नाइस. तो हम लोग को a प्लस बी इज इक्वल टू 25 मिल गया, हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन मिल गया. यहां तक किसी को भी डाउट, एवरीबडी अंडरस्टूड a प्लस बी इज 25, दिस इज वेरी क्लियर, राइट. a प्लस बी इज 25. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सम. अभी ये सोचना है, अभी तो डेफिनेटली हम लोग ने सिर्फ क्वार्टाइल पढ़ा है, तो सिर्फ क्वार्टाइल बेस्ड सम होगा. जब हम लोग डेसाइल्स परसेंटाइल्स पढ़ेंगे तब हमको ये भी सोचना पड़ेगा, क्वार्टाइल है कि डेसाइल है कि परसेंटाइल है, क्वार्टाइल है तो कौन सा क्वार्टाइल है, डेसाइल है तो कौन सा डेसाइल है, परसेंटाइल है तो कौन सा परसेंटाइल है. तो यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ क्वार्टाइल है, Q1 Q2 Q3. मीडियन इज 120 बोला है और हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि मीडियन होता है Q2. तो डेफिनेटली ये सम को ऐसे अप्रोच करो, मीडियन दिया है 120, Q2 दिया है 120, तुम लोग ऐसे सोचो कि मीडियन नहीं दिया हुआ है, और अगर मीडियन नहीं दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे, मीडियन कैसे ढूंढेंगे, ये अप्रोच करते हैं. सो डेफिनेटली आई वुड बी 2, n is 50 and 4. I 2 है बिकॉज द सम इज रिलेटेड टू मीडियन. इसको सॉल्व करते हैं 100/4, दैट वुड बी 25. अभी हम लोग मीडियन इज 120 बोला है, तो मुझे तुम लोग बता सकता है क्या क्वार्टाइल क्लास क्या होगा. in/4 25 आ गया, ये बाद में देखते हैं. in/4 आ गया मुझे 25, in/4 आ गया 25.
Okay, the right answer is given by Richel, Nazia, निखिल नहीं, धैर्य आंसर रॉन्ग है वो. अरे आई एम आस्किंग क्वार्टाइल क्लास क्या होगा, तो तुम लोग क्या आंसर दे रहा है मेरे को, मनीष, हर्षल? क्वार्टाइल क्लास. ओके. Okay, these are old students giving me right answers. Manish wrong. Why 252? Yes, Ronak, you're right. Now students, अगर तुमको याद है तो मैंने प्रीवियस सम्स में बताया था, जो भी अभी देखो यहां पे है 25 किधर भी लाई कर सकता है, इधर भी लाई कर सकता है, इधर भी लाई कर सकता है, इधर भी लाई कर सकता है. अगर A 1 हुआ तो इधर लाई नहीं करेगा, B भी 1 हुआ तो इधर लाई नहीं करेगा. तो until and unless I know the value of A बेस्ड ऑन in अपॉन 4 तो मैं ढूंढ ही नहीं सकता हूं कि 25 या 25 से ज्यादा कहां पे आएगा. यहां से भी आ सकते हैं, यहां पे भी आ सकते हैं, यहां पे भी आ सकते हैं. बट तुम लोग ने देखा रहेगा मीडियन इज 120, और मैंने बताया था आंसर जो 120 आता है वो क्वार्टाइल क्लास के अंदर ही होता है. राइट, आंसर जो आता है वो क्वार्टाइल क्लास के अंदर आता है. तो 120 किसके बीच में आ रहा है? देखो 120 किसके बीच में आ रहा है? 100 टू 150 के बीच में आ रहा है. 120 किसके बीच में आ रहा है? 100 टू 120. तो मेरा क्वार्टाइल क्लास हो जाता है 100 टू 150. ये समझा सबको? वेरी क्रूशियल, वेरी क्रूशियल. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? 100 टू 150 क्यों आया? बहुत सिंपल, मुझे आंसर दिया है ना पहले से, और मुझे मालूम है आंसर तो मीडियन क्लास क्वार्टाइल क्लास के अंदर ही आता है. अगर मीडियन बोला है 120 तो 120 कौन से क्लास इंटरवल में आता है? इसको उल्टा देखना पड़ता है, याद रखो. क्योंकि 25 के बेसिस पे मैं ढूंढ ही नहीं सकता हूं, ए और बी का वैल्यू मालूम नहीं है तो मुझे पता ही नहीं इसमें से 25 से ग्रेटर कौन है, 25 से स्मॉलर कौन है. डेफिनेटली 200 टू 250 तो 25 से ग्रेटर है. और यहाँ पे फिर तो बताना बहुत डिफिकल्ट हो जाता. बाकी दोनों 25 से ग्रेटर है कि छोटा है. ओके ओके, एवरीबडी हैज अंडरस्टूड, देयर इज नो नो आई कैन सी. तो अभी मुझे बताओ, ये सब में क्वार्टाइल क्लास आ गया, ये मेरा क्वार्टाइल क्लास. एल क्या होगा? 100. लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास. एच होगा 50 क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस 50 है, 50 और 0 का. एफ होगा 15. और सी एफ क्या होगा? सी एफ क्या होगा, कोई बता सकता है सी एफ क्या होगा? सी एफ, सी एफ क्या होगा? सी एफ. यस नाजिया, योर आंसर इज राइट. अदर्स बाकी सब सो गए लगता है. सी एफ होगा 7 प्लस एफ. तो क्वार्टाइल का फॉर्मूला तो हमारा सेम होगा, क्वार्टाइल का फॉर्मूला तो नहीं बढ़ा. Q1 QI is equal to L plus H upon F IN upon 4 minus CF. I हो जाएगा 2 QI Q2. L हो जाएगा 100. H हो जाएगा 50. F 15. IN upon 4 25 minus CF that is 7 plus A. अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स नॉर्मली लोग गलती करता है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है और ये बाइनोमियल है 7 प्लस है, तो ब्रैकेट कंपलसरी है क्योंकि ब्रैकेट के बाद साइन चेंज हो जाएगा. तो बी केयरफुल, यहाँ पे पुट ब्रैकेट. अभी Q2 के जगह पे सब्स्टिट्यूट करो 120, और अभी इसका आगे का सॉल्विंग तुम लोग खुद करेगा. आई एम वेटिंग फॉर 5 मिनट्स. I'm giving you 5 to 10 minutes. Just solve the sum and let me know. Okay? 5-10 minutes to finish solving quickly. Solve and you'll get the value of A. I'm giving you 5 minutes.
Yes, Dhairya, tell me. Okay, some of you have done. I'm waiting for many of you. B-1 नहीं आ पाएगा, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकता ना धैर्य, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव होता है क्या? ओके तनिषा, योर आंसर इज राइट. सो मैं सॉल्व करता हूं तुम्हारे लिए. L would be 100, 50/15 वैसे ही रखते हैं, 25 वैसे ही रखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, -7 और प्लस से हो जाएगा -8, 120 प्लस 100 को शिफ्ट कर देते हैं, -100 हो जाएगा, 50/15 ब्रैकेट के अंदर 25 - 7 विल बी 18 - 8. ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 120 - 100 विल बी 21. और ये 50/150, ये 50/15 है स्टूडेंट्स. वी विल ट्राई टू शिफ्ट इट टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो 15/50 हो जाएगा. मे बी नेक्स्ट स्टेप में करते हैं. 18 - 8, 20 लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, 15 हो जाएगा ऊपर और 50 आ जाएगा नीचे, इज इक्वल टू 18 - 8. अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 कैंसिल, 5 1 जार, 5 3 जार, ये हो जाएगा 3 2 जार 6, 3 2 जार 6 हो जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू 18 - a हो जाएगा. -a को इधर शिफ्ट करो प्लस से, 18 - 6 हो जाएगा 12. अभी a 12 आ गया, तो a का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करो, you get the value of b. So 12 plus b is equal to 25. b will be 25 minus 12. b would be 13. So the missing frequencies are 12 and 13. क्या गलत किया था धैर्य? धैर्य क्या गलत किया था? मिस्टेक किधर था? Yes, Tanisha, right. Perfect. I think it's an easy sum. बहुत अच्छा complicated sum है, but easy है if you solve, practice, आ जाएगा आंसर. Shouldn't be a problem. Silly mistake. Okay. Silly mistake costs us marks. Okay. I believe I'll give you 2 more minutes to copy down the entire sum. फिर हम लोग copy down the sum quickly. We'll wait for 2 minutes and then we will go ahead with the next sum. Next sum is completely to be solved by you all. I'm just going to wait and then discuss the answer. Okay. Yes, Himanshi Jain, I can read your text. Yes, Harshal, where will I go? Okay, I believe everybody is done. Okay, solve. Missing frequencies ढूंढना है. एक को A दे देना, एक को B दे देना. चलो जल्दी सॉल्व करो. Q1 दिया है 20.75. चलो क्विकली सॉल्व करो, क्विकली. I'll help you all in stages. In fact, I'll go put myself on mute so that I don't disturb you all solving. पहले CF ढूंढो, IN/4 ढूंढो, क्वार्टाइल क्लास ढूंढो. क्वार्टाइल क्लास तो अभी पता चल जाएगा, 20.75 तो क्वार्टाइल आएगा 20 to 30. Okay, over to you guys, quickly solve.
यस है, Q1 के हेल्प से करना है सम। मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम के साथ हेल्प करता हूं। आई बिलीव एवरीबडी हैज गॉट व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन। एनीबडी गॉट द फर्स्ट इक्वेशन? हैव यू फॉर्म द फर्स्ट इक्वेशन गाइस? ओके गुड, गुड धैर्य, गुड हर्ष, गुड प्रथमेश, मनीष, पृथ्वी है, तनिषा, ध्रुव, नाजिया। These people have got it right as of now. So just discuss। पहले वाला 3 होगा, फिर 3 प्लस ए होगा, 3 प्लस 20 हो जाएगा 23 प्लस ए होगा, 23 प्लस 12 हो जाता है 35 प्लस ए होगा, 35 प्लस ए प्लस बी होगा। N50 है, क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि there are 50 shops. So based on the table we know the last value of cumulative frequency is always equal to A, always equal to N, sorry. So A plus B will be 50 minus 35. That is 15. Equation number 1. Okay, great. यहां तक आई बिलीव सबको आ गया रहेगा। अभी आयन अपॉन 4 ढूंढो जल्दी। ओके, आई हो जाएगा 1, एन हो जाएगा 50। तो आई 1 into 50 upon 4, that would be 12.5. Very good, very good. Nazia has given me the answer of ion upon 4. Now Q1 is 20.75. तो क्वार्टाइल क्लास क्या होगा? क्वार्टाइल क्लास का आंसर बताओ, चलो जल्दी मैसेजेस में मुझे क्वार्टाइल क्लास का आंसर बताओ। परफेक्ट परफेक्ट, क्विकली फश 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 बताओ। Yes, money. Oh, everybody is right. Everybody is right. Now, Neeraj, check your answer. Yes. Sneha, I don't understand when you say just 30. It has to be 20 to 30, 20.75. I believe everybody meant this. Okay. Okay. Everybody's got the same till here. No issues, right? Okay, great. फिर हम लोग का क्वार्टाइल क्लास अगर 20 to 30 है तो L हो जाएगा 20, F हो जाएगा, H हो जाएगा 10, F हो जाएगा 20 और CF हो जाएगा 3+A। क्या बात है, यहां तक आ गया सबको? अभी फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, Q1 L हो जाएगा 20, okay, I'll wait for 5 minutes. 11:15 I will discuss the answer. It's 11:10 now. 11:15 I'll discuss the answer.
Okay, 1 more minute to finish the sum. Quickly finish, and then I will discuss the answer. Okay, okay. कहीं गया नहीं था, just here. Okay, QI will be Q1. Yes. L will be 20. Anybody having a doubt in solving? You should be able to solve this sum on your own. H would be 10. F would be 20. In upon 4 is 12.5 minus CF is 3 plus L. Q1 is 20.75. Check कर लो अपना अपना आंसर्स. 20 ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल हाफ. 12.5 minus 3 minus A. 20.75 प्लस 20 इधर आया तो माइनस 20 हाफ वैसे ही. और 12.5 माइनस 3 करेंगे ब्रैकेट के अंदर. देखो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. अभी सब्ट्रैक्शन करने में अगर प्रॉब्लम है 12.5 माइनस 3 करेंगे तो 3.0 आएगा. ये 5 हो जाएगा और ये 9.5 हो जाएगा. माइनस है 20.75 माइनस 20 विल बी 0.75. हाफ को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2/1 हो जाएगा तो दैट इज 2 हो जाएगा. और ये 9.5 माइनस ये हो जाएगा. सो डेफिनेटली 0.75 into 2 will give us 1.5 is equal to 9.5 minus A. माइनस A को इधर शिफ्ट करो. 9.5 प्लस 1.5 इधर आएगा तो माइनस 1.5. A would be 8. Any doubt? I'm assuming everybody understood this. I'm assuming everybody has got till here. आना चाहिए. Simple calculation से. Yes, yes. Substitute करो A को. And D would be 7. The missing frequencies are 7 and 8. Okay, another minute and then we will move to the next sum. Okay. Okay. Students, next is the big sum which we may not able to take it ahead. So I think if you're done copying the sum, you can leave the lecture. If you're done copying the sum, leave the lecture, because I would